Unit 2, Growth and Movement in Living Things. Difference between living thing and non-living things. Living things eat food, breathe, get rid of waste material, grow and move, while non-living things do not show these activities. Is it clear? Living things eat food. Living things actually include all plants and animals, right? You see, all plants, all animals, they eat food. Similarly, the plants, they also prepare the food in the presence of sunlight. Now breathe. All animals, they breathe. They take in oxygen and they give out carbon dioxide. Similarly, in the plants, they take carbon dioxide and they give out oxygen. Get rid of the waste material. It means the unwanted things from the body. राइट वो चीज़ें जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती उनको हम बाहर खारिज कर देते हैं. ठीक है. प्लांट्स भी इसी तरह, जो पानी उनको नहीं चाहिए होता, वाटर प्लांट के लिए ज़्यादा हो जाता है, फिर वो एक्सेस पानी जो होता है वो प्लांट के लीफ के ऊपर आपको प्लांट ड्रॉपलेट के फॉर्म में नज़र आता है. ठीक है. इसी तरह एनिमल्स पे भी जो वाटर उनको नहीं चाहिए होता वो स्वेट के फॉर्म में आप उनकी बॉडी के ऊपर देख सकते हैं. और इसी तरह हम जो फूड खा लेते हैं वो फिर हम उसको एक्सक्रीट करते हैं. सो इसको हम कहते हैं गेट रिड ऑफ वेस्ट मटीरियल. द नेक्स्ट इज ग्रोथ. यू कैन सी ऑल प्लांट्स, they grow mean they increase in size. Similarly, all animals, they grow mean they increase in size, right? Move. All living things are able to move. Plants can move some of their parts, while animals can move from one place to another. Is it clear? So when questions come like name 5 things that living things can do that non-living things cannot do. So your answer will be living things eat food, breathe, get rid of waste material, grow and move. Yes. Okay. Examples of living things. All plants and animal. ठीक है. क्या है एग्जाम्पल लिविंग थिंग की? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग. एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स: रॉक्स, स्टोन्स, पेबल्स, सैंड, एक्सेट्रा. यू कैन सी इन द पिक्चर इन योर बुक पेज 11 पिक्चर ऑफ रॉक, स्टोन्स, पेबल्स, राइट? पत्थरों को कहते हैं. तो दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. Okay, the next topic is movement in animals. Animals can move from place to place by using their legs, fins, flippers और wings. अब हम देखते हैं कि legs कौन यूज़ करता है, fins कौन यूज़ करता है. So, legs. You all know that human beings, they use leg to move from one place to another. इसके अलावा कौन animals हैं? Like rabbits, monkeys, kangaroo. They have leg to move, hop, jump or crawl on land. Similarly, fins. Fins किसके होते हैं? Yes, fish have fins to swim in water. अब flippers किसके होते हैं? Some large animals like dolphins, whales, sharks and seals have flippers to swim in water. Wings. Yes, all birds and insects have wings to fly. You can see the picture of all these animals in the book, right? Okay, so when questions come, name some of the ways in which animals move. So your answer will be animals can move from place to place by using their legs, fins, flippers or wings. Okay, muscles. अब बॉडी मूव करने के लिए तो कुछ चाहिए जिसकी वजह से जो है हम मूव करें एक जगह से दूसरी जगह. तो वो चीज़ क्या है? येस, दैट इज मसल्स. मसल्स के ज़रिए जो है हम अपनी बॉडी की मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं.
मसल्स मेक योर बॉडी टू मूव। मसल्स जो है हमारी बॉडी को एबल करते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करें। अब मसल्स कहाँ ज्वाइन होते हैं? मसल्स आर ज्वाइन टू द बोन्स। द पॉइंट्स वेयर टू बोन्स फिट इज कॉल्ड अ जॉइंट। अब मसल्स हमें कहाँ मिलेंगे? बोन्स के ऊपर जो है मसल लगे हुए होते हैं। द पॉइंट्स वेयर टू बोन्स फिट, वो पॉइंट जहाँ पे दो बोन्स जुड़ते हैं उसको हम जॉइंट कहते हैं। अच्छा, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन इज कॉल्ड अ स्केलेटन। एक फ्रेमवर्क है बोन्स का, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटन। सो व्हेन द डेफिनेशन ऑफ स्केलेटन कम, योर आंसर विल बी द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड अ स्केलेटन, राइट? ओके, and when a questions come, which part of your body help it to move? Yes, muscles. Muscles make your body to move. Okay, coming to the next topic, that is, some animals do not have bones inside their bodies. They have hard outer covering called एक्सोस्केलेटन। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर बोन्स जो हैं वो नहीं होते, बॉडी में बोन्स नहीं होते, ठीक है? सो दे हैव हार्ड आउटर कवरिंग। उनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन, राइट? एंड द एग्जाम्पल्स आर एंट्स, cockroaches. They are examples of exoskeleton, right? अब क्या है कि some animals do not have any bone or exoskeleton. अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके ना तो बोन्स होते हैं ना एक्सोस्केलेटन होते हैं। तो वो कौन से एनिमल्स हैं? दे आर अर्थवर्म एंड कैटरपिलर। कौन से एनिमल्स हैं? अर्थवर्म एंड कैटरपिलर। अब इनकी बॉडी में ऐसी क्या खास चीज़ होती है जो स्केलेटन ना भी हो फिर भी ये मूवमेंट जो है कर सकते हैं? तो अर्थवर्म में क्या है? अर्थवर्म डू नॉट हैव एनी बोन्स और एक्सोस्केलेटन्स। देयर बॉडीज आर सॉफ्ट, दे यूज देयर मसल्स टू क्रॉल, ठीक है? मसल्स के जरिए ये क्रॉल करते हैं। अब कैटरपिलर में क्या है? द बॉडी ऑफ अ कैटरपिलर इज सॉफ्ट, इट इज फिल्ड विद वाटरी सब्सटेंस, दिस वाटर सपोर्ट इट्स बॉडी एंड हेल्प इट टू मूव, ठीक है? इसके बॉडी के अंदर वाटरी मटेरियल होता है जो इसकी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। इज इट क्लियर? सो व्हेन क्वेश्चंस कम like, what is the difference between a skeleton and an exoskeleton? Yes, your answer will be the framework of bones is called a skeleton, while some animals do not have bone inside their body. They have hard outer covering called exoskeleton. Yes, I hope you understand this topic.